جب آپ چیزیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ایڈریس ہونی چاہیے تو ایک اچھے ماحول میں ہم بات چیت آپس میں کریں. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی آپ کو لگے کہ آپ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آگے سے جو دوسری پارٹی وہ تو لڑنے لگ جائے گی تو آپ اوائڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی تیسرے آدمی کو بیچ میں لاتے ہیں. جب میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو دے گو ٹو اے کنسلٹنٹ. بہت سے ناراض ہو جاتے ہیں تھرڈ پارٹی کو بیچ میں کیوں ڈالا. دیکھیں یہ اگین یہ سچویشن دیکھیں میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ میجورٹی آف دا کیسز میں یہ مسئلہ حل ہو جاتے ہیں کہ ایک جب ہم بات کریں گے. اور عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم جو آپ سچویشن بات کر رہی ہیں تو اس میں ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے آدمی کو الزام دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر ہم یہ اس طرح کی چیز شروع کرتے ہیں کہ جی دیکھیے یہ ایک ایشو ہے جو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا آپ کو بھی اچھا نہیں لگتا تو آئیے ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے تاکہ لائف ہماری یا بچوں کی یا فیملی کی وہ اچھی گزرے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اچھی طرح سے بات کر لیں گے تو ایک انڈیویجول وہ پھر جب اکیلا ہوگا تو وہ یہ بار بار سوچے گا کہ یار یہ بیگم نے یا بیٹی نے یا کسی نے یہ بات کی ہے تو اس کے پیچھے کیا چیز ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے. کافی ساری دفعہ اگر فیملی کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ کام جو ماں نہیں کر سکتی یا بیوی نہیں کر سکتی وہ بیٹی کروا دیتی ہے. تو یوز ان سچ سچویشنز یور ڈاٹر اور سن کہ جو لاجیکلی اس معاملے کو حل کر سکتے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس کتنا ٹائم رہ گیا سر؟ 20 منٹ. ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں خصوصاً انڈیا پاکستان میں نے کافی دیکھا ہے وہ ان چیزوں کو خرید کر پیش کرتی ہیں ماحول خراب صرف ہوتے ہیں مردوں اور عورتوں کے مائنڈ میں کوئی اسٹرکچرل ڈفرنس ہے کہ سر یہ سوال جو ہے مے بی ایٹ سم ٹائم ہی نیڈس ٹو آنسر. میں نے اس پہ ریسرچ نہیں کی لیکن یہ ہے کہ چونکہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر ہم انڈیا پاکستان کی بات کرتے ہیں تو تعلیم کی کمی ہے لیکن ان کی تربیت بہت اچھی تھی. ٹھیک ہے. تو جب ہم اوپن بات کریں اور ماحول اس طرح کا کریٹ کریں گے جیسے آج ہم بات چیت کر رہے ہیں تو اس سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آئی ہیونٹ اسٹڈیڈ دس کہ یہ عورتیں زیادہ کرتی ہیں یا مرد زیادہ کرتے ہیں. سر لیکن آدمی بھی ہرٹ ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ مسلسل کیا جائے اور وہ آگے سے نہ بول سکے کسی بھی ریلیشن میں اور ہسبینڈ وائف کی چیز نہیں ہے ان کو اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اپنی فیملی میں اس طرح اور وہ جب جھگڑے کو اوائڈ کرتے ہیں تو ایک ٹائم میں 5 سال 10 سال 15 سال بعد وہ اتنا ہرٹ ہو جاتے ہیں اور وہ چیزیں ریزالو نہیں ہوتی اور آرام سے سمجھانے سے اگلے سمجھتے بھی نہیں ہیں. ایسی سچویشن بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیے اتنا لمبا کھیل کو چلنا نہیں چاہیے. اسی وقت ہم اس وقت یا مناسب وقت لیٹ می کال اٹ مناسب وقت تو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور سر جو آپ نے بات کی ہے یہ میرا خیال ہے یہ کسی جینڈر کو اسپیسیفک نہیں کرتا ہے یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے ٹائپ آف دا پرسن کیونکہ جینڈر کو اسپیسیفک کرنا ڈسکریمنیشن میں تھوڑا سا آتا ہے. اس سینس میں کہوں گا کہ یہ میں نے بندوں کو بھی بہت زیادہ کریٹ کی باتیں نکالنے والا دیکھے رہتے تھے عورتوں کے. دیکھیے بیسیکلی میں نے یہ جواب دیا کہ میں نے چونکہ اس پہ ریسرچ نہیں کی تو میں اس کا جواب نہیں دے رہا. جی سر. مائی نیم از شکیل احمد. میرا اپنا تجربہ یہ کہتے ہیں کہ فیملی ویلیوز تربیت شروع سے جو بچپن سے ماں باپ کو لوگ دیکھتے ہیں وہی چیزیں آگے چلتے جاتی ہیں. تو اٹ از آل belongs to your roots in general. Families is all family values. ٹھیک تھینک یو. جی سر جو سر نے بات کی ہے اس میں صرف ایک اسٹیٹمنٹ دوں گی کہ بر صغیر کا حساب مزاج گزشتہ سے پیوستہ ہے. اوکے. اچھا سر مجھے کہا جا رہا ہے کہ ٹائم کنسٹرینٹ ہے تو ہم جنرل گفتگو یہ ٹھیک. جی سر آپ جی جی
यस मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, हाँ ये मेरे बेटे बहुत हो, गलत मेरा है। सही समझते हैं। इसमें जो ego is, I'm sorry, that's wrong. इसमें जो emotional blackmail हम ये करते हैं, या control करते हैं, and what we say is our ego. One question. Second, sir, how to write this? Last question, कि आपने कहा self motivation, self awareness, self control. इसमें जो मेरा जाती बायोलॉजिकल डिके होता है, मैं आंसू नहीं आ सकता, मैं खेल नहीं सकता, मैं रो नहीं सकता, मैं एंजॉय नहीं कर सकता, तो मुझे डायबिटीज हो जाती है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसका क्या रिलेशन है? देखिए सर, मैं पहले का जवाब दे दूं कि देखिए ये ज्यादा सही है। जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि मैंने अगर डेमोन्स्ट्रेशन करना है तो मैं जरूर करूं, लेकिन मेरे डेमोन्स्ट्रेशन में ये तय हो जाना चाहिए कि जब जाहिर असगर डेमोन्स्ट्रेट करेगा आपके साथ मिलके, तो मैं एक माहौल ऐसा क्रिएट नहीं करूंगा कि जहां हम सबको या किसी को नुकसान पहुंचे। ठीक है, इसी तरह बातचीत है जी। तो बेसिकली मुझे ये हक है कि मैं कहीं बैठ जाऊं और अगर मैंने फर्ज कीजिए कि गालियां देनी है तो मैंने यहां तस्वीर लगा दी। दिस इज अ स्टडी, जापान में ज्यादा हुई, कि जहां पे उन्होंने कहा कि किक करो, वो उसने कहा कि जी मुझे ये अच्छा नहीं लगता, वो अंदर बैठा हुआ उसने अपना गुस्सा सारा निकाल दिया। ठीक है, तो इससे वो जो हमारी अंदर की सारी चीजें जमा हो रही हैं वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी चीज है ब्लैकमेलिंग। अनफॉर्चुनेटली मेरे मुल्क में या मेरे माशरे में जब हम बच्चों को बड़ा कर देते हैं तो हम ये समझने से कासिर हैं कि यार इस बच्चे को तो मैंने बड़ा कर दिया, मुझे इसकी बात सुननी है, इससे राय लेनी है, इससे पूछना है, मैंने इस पर रोक थाउसना नहीं। जब ये छोटा था तो मेरा रोल डिफरेंट था, जब ये बड़ा होना शुरू हुआ तो माय रोल इज डिफरेंट। ये अब पहले बाप को समझता था या मां को समझता था कि ये मेरे लिए पीर है, अब उसके मॉडल्स चेंज हो रहे हैं। रोल मॉडल उसका टीचर हो सकता है, रोल मॉडल टीवी पे का कोई बंदा हो सकता है। तो आई एज अ फादर या आई एज अ सीनियर या मदर, आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट आई नीड टू चेंज माई सेल्फ। तो बच्चों से हम ये तवक्को ना करें, बच्चों को बड़ा होने दें। मैं चूंकि ट्रेनिंग खेल खेलता रहता हूं, तो मेरा एक दिन बेटा एक दिन साथ थे, तो अगेन उसने बड़ी मजेदार बात पूछी जो कि बड़ी अप्रोप्रिएट है इसके लिए। उसने मुझे कहा कि डैडी वुड यू माइंड इफ आई ग्रो बेटर देन यू? मैंने उसको कहा माई होल एफर्ट एंड योर मदर्स एफर्ट इज फॉर दिस, दैट यू ग्रो बियॉन्ड अस इन योर करियर, इन योर रिलेशनशिप, इन योर जो भी जिंदगी के आपके डायमेंशन है उसमें यू शुड बी बेटर देन व्हाट वी आर, बेटर सिटीजन। तो सर बेसिकली वो जो हम बात करें तो ओनस लाइज विद पेरेंट्स। सर इमोशनल टेंडेंसीज, द पैशन, द इनर ड्राइव, जो ये वो चीज है जिसने कायदे आजम से कहा कि पाकिस्तान बनना है, जिसने आसिफ से कहा कि तुमने क्रिकेट खेलनी है और दुनिया में नाम पैदा करना है। और ये बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, डॉक्टर कबीर खान की एग्जाम्पल है। आम हालात में उसको छोड़ के पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। इट वॉज ए सेल्फलेस वो कि यार पाकिस्तान को इसकी जरूरत है। उस बंदे को ये अच्छा नहीं लगा जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। फॉर्च्यूनर कौन और तुम्हारी बीजी ट्रैफिक जैम हो गया। सर दीज आर द ड्राइव, अचीवमेंट ड्राइव, कमिटमेंट, इनिशिएटिव एंड ऑप्टिमिज्म। ये आप देखेंगे तो जो हमने सारी एग्जांपल्स दी हैं तो ये आपको वहां तीनों चीजें नजर आएंगी। ठीक है, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि वो यहाँ का और ठीक है ठीक। अच्छा, लेट्स स्पेंड सम टाइम ऑन एम्पैथी, राइट? व्हाट इज एम्पैथी? Putting yourself in another's shoes. Others' shoes. ये पढ़ लें। The ability to sense
understand others' situation, point of view, and taking interest in their concerns and feelings. Exhibit your feelings that you understand and feel. Empathy बगैर इस चीज की नहीं हो सकती. मैं ये समझ भी लूं और अगर मैंने डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया तो ये नहीं हो सकता. Empathy, this is very important that we apply effective listening, we pay attention to verbal and non-verbal signs, we communicate our feelings, identify opportunities for others' delight. Social skills is our ability to effectively build and manage relationships and networking. Stay proactive, find common goals. Objective should be win-win relationship, respect others, first understand and then to be understood, and synergize. तो synergize जो है वो मैं अगर किसी मेमन से पूछता हूँ तो वो कहता है कि जी मैं कहूँ कि जी 1+1 क्या है, अमीन से पूछूं तो वो कहेगा मैंने पैसे लेने हैं या देने हैं. अगर मैंने लेने हैं तो 11 है और अगर देने हैं तो 2 है. तो बेसिकली अमीन मियां तो जो सिनर्जी है दिस इज बेसिकली अगर हम दो चीजों को प्लस करें उससे ज्यादा है. बिकॉज दो दुनिया आपस में मिलेंगी या दो लोग आपस में मिलेंगे तो सिनर्जी वुड क्रिएट मच बेटर रिजल्ट्स देन द मैथमेटिक्स. देखिए ये जो दो हैं दीज आर हाई इन जब गुस्सा आता है झगड़ा होता है इमोशनल कोऑर्डिनेट्स तो दीज आर टू हाई एनर्जी कोऑर्डिनेट्स जिसमें नेगेटिव इज एंगर एंड फॉल्ट फाइंडिंग. तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, गुस्सा कहां सारा. एंड दिस इज एक्साइटेड एक्शन टू बिल्ड अप हेल्प. दिस इज दिस. या वो बंदा है अपने कूजे में बंद है, हेजिटेंट है, बात नहीं कर सकता, डिसएग्रीमेंट है, अनायंस है सेल्फ के अपने साथ, या वो बात ठंड मचाएगी यार ये रिलैक्स एंड ही इज एबल टू लर्न, ही इज एबल टू आस्क. तो हम में से वो दोस्त जो कभी उनको इस क्वाड्रेंट में है या इस क्वाड्रेंट में है, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि हर आदमी इस क्वाड्रेंट में हमेशा रहेगा, ये चेंज होता रहेगा. लेकिन कुछ लोग जिस तरह आप अभी पूछ रहे थे आप, कुछ लोग ज्यादातर यहां रहेंगे या यहां रहेंगे. अब मैं यहां पे अगर हूं और मुझे गुस्सा आता है तो आई नीड टू आस्क माई सेल्फ कि मुझे गुस्सा किस बात पे है. हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस सिचुएशन टू दिस सिचुएशन. द ऑब्जेक्टिव जहां पे भी आप ये देखिए या ये देखिए, द ऑब्जेक्टिव शुड बी दैट आई नीड टू ब्रिंग दिस टू दिस. I need to bring this to this. When we express love, care, acceptance, due appreciation, respect, empathy, we create happiness within ourselves and others. So we need to do this. प्यार भी करिए, केयर भी कीजिए, दूसरों को समझ लीजिए और जहां जरूरत हो अप्रिशिएट कीजिए, इज्जत कीजिए. और जब मैं फियर का शिकार हूं, एंगर हूं, क्रिटिसाइज करता हूं, जेलसी रखता हूं, फॉल्ट फाइंडिंग करता हूं, डिसएग्रीमेंट करता हूं, तो वी एक्सपीरियंस इमोशनल chaos, insensitivity to other, distance. लेकिन लाइफ में आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल कि अगर आप देखिएगा कि जैसे भी दोस्त कह रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो क्रिटिसाइज करते रहते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, तो आप देखिएगा कि वो लोग आहिस्ता आहिस्ता तन्हा हो गए. लोग उनसे मिलना पसंद नहीं. There is somebody like you, हंसता खेलता बर्दाश्त करता हुआ, बात सुनाता हुआ, बात करता हुआ, प्यार करता हुआ, केयर करता हुआ. लोग कहें यार इस बंदे के साथ मिलना है, इसी से मिलो, इससे बातचीत करो, इससे सीखो. वो अपना दायरा इन्फ्लुएंस बढ़ाता चला जाए. एंड दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस थ्रू आवर लर्निंग,
of emotional intelligence. I'm so grateful to all of you. जिलानी साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं जिलानी साहब का, PACC का और हम तमाम शुरा का की तरफ से वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं और उनका शुक्र अदा करते हैं। बेहतरीन लर्नड स्पीकर था आपका, आपने बड़ा रोशन किया जाहिद अजहर साहब। और हमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज इमरान यूसुफ भी सुनने को देखने को मिल गए। दोनों बातें सुनने को तो ये यूट्यूब पे भी मिल जाते हैं लेकिन देखने को नहीं मिलते, तो वी शुड बी थैंकफुल। सबसे पहली बात यह कि आपने जिस टॉपिक का इंतखाब किया लर्नड स्पीकर, उसका बहुत जरूरत तमाम अक़वाम आलम को है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें है। हमें है, हमारे घराने को है, हमारे लीडर्स को है, हमारे पूरे माशरे को। सबसे पहली बात जो है वही कि हमें अपने जज्बात को काबू में रखना चाहिए। और दूसरी जो आपके लेक्चर से हमने अख्ज़ किया, अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे बताइएगा। सबसे पहले तो ये कि हमें अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए और दूसरों के जज्बात का एहतराम करना चाहिए। अगर जज्बात आपस में यकसानियत रखते हैं और कुछ बेहतर बनते हैं तो उसे कायम रखना चाहिए, उसे दायम रखना चाहिए। तो यही हमारा मोटिव है कि हम अच्छे जज्बात के लोगों को अपने साथ लेके चलें। सबसे पहली बात तो ये कि हम सबसे पहले अपने जज्बात को परखें। जज्बात पे काबू पाना, जज्बात पर अमल करना कहना बहुत आसान है। इसके लिए बहुत तालीम चाहिए, तरबियत चाहिए, शऊर चाहिए, इदराक चाहिए और मुख्तलिफ किस्म के, जिसे कहना चाहिए, इदारों से गुजरते हुए आपको देखना है कि हम अपने आप को कैसे पुख्ता करें। पुख्ता काज जो है असतदा, अतिब्बा, हुक्मा, ये तमाम के तमाम लोग यही तो दर्ज देते हैं कि आपने जज्बात पर काबू पाओ, लेकिन हमेशा ये अच्छा होता नहीं है। क्योंकि बाद वक्त हम गलतियां करते हैं, गलतियां करने के बाद हमें एहसास होता है कि हम कुछ गलत कर गए, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस पशेमा का पशेमा, मैं तो मर गया, मेरा काम हो गया, अब आ चुका हो। इसके बाद आपने लफ्ज़ की बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी जो बड़ी मुनफरिद है। मैं इससे इत्तेफाक करता हूं या नहीं करता इसका तो मैं इजहार नहीं करूंगा, लेकिन डेफिनेशन बहुत मुख्तलिफ है। आपने कहा लिसन, ऑब्जर्व, वैलिडेट, एम्पैथी एंड डिमोरलाइजेशन, व्हाटएवर इट इज। अच्छी तरीके से लिख नहीं सका, लेकिन ये तो किताबी डेफिनेशन है। कानून, मोहब्बत, ये अंधे होते हैं और दौलत ये सिर्फ सुनते हैं। तैमूर की यहाँ एक रक्कासा थी, वो लंगड़ी थी, उसका नाम दौलत था। तैमूर ने कहा तंजन कि दौलत तू लंगड़ी है और मेरे दरबार में आई है। कहना दौलत हमेशा ऐसे ही दरबारों में जाती है जहां ना अहल में पाई जाए। खैर, इसके बाद आपने बड़े अच्छे अच्छे मनादे दिखाए, प्यार, मोहब्बत, कामयाबी, ममता और साथ ही साथ रिक्कत, लगन, शुक्रगुजारी, तजस्सुस, जस्तजू और सारे के सारे जज्बात आपके मनाजिर में मौजूद थे। और आखिर में आपने मौजू को इतना खूबसूरत कर दिया कि आप सांस बहुत ले गए सारी पिक्चराइज करके। फिर आपने बात की कि जब आपने बात की है कि हमारे जज्बात कैसे हों, तो बात वक्त बड़े मुख्तलिफ होते हैं। उनको आता है प्यार पर गुस्सा, हमको गुस्से पे प्यार आता है, बड़ी डिफरेंस। इसके बाद आपने एम्पैथी की बात की। एक सिर्फ लास्ट जिलाई साहब उठ रहे हैं वहां से, आखिरी एक बात कहता है, आपको दिल की तबाही का भला क्या एहसास, एम्पैथी से रिलेटेड है। आपको दिल की तबाही का भला क्या एहसास, आप गुजरे ही नहीं है कभी गम खाने से। फिर कीजिए, अब वहां से जवाब आई थी, टू पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ द अदर्स। ये हम जब भी होगा जब हम महसूस करना सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लर्नड स्पीकर और जलील साहब, खासतौर पे आपका और इदारों का, उन सब लोगों का। थैंक यू वेरी मच।